Good morning, children. Today we will study about some commercial cells or batteries. Battery is a common term for the cells, but actually battery is the combination of cells in series. As per principle, any indirect redox reaction can be utilized for making the cell, but all the indirect redox reactions cannot be used for the commercial preparation of cells or batteries. This is due to several reasons, as the salt bridge is used in electrochemical cells, so that creates internal resistance, and also it is bulky, it is not so much compact, so it cannot be carried from one place to another place easily. So an electrochemical cell which is to be used as commercial cell must fulfill the following requirements. First, it should be light, it should be compact and portable. Its voltage should not drop much during its use. Now, commercial cells can be classified into three types. One is primary cells, secondary cells, and third is fuel cells. Primary cells means the cells which becomes dead after the use. In such cells, the cell reaction cannot be reversed. In secondary cells, so this type of cell can be used again and again by continuous charging and discharging cycle. They can be used again and again. The example of secondary cell is a lead storage cell and nickel cadmium cells. Fuel cells. In this cell, the chemical energy of the fuel is directly converted into electrical energy without any combustion device. So the fuel cells that have been used in Apollo moon mission program is hydrogen oxygen fuel cell. So in this case, some fuel is used like hydrogen, methane, etc., and oxygen or oxidizing agent can be used as oxidizer. But the fuel cell that have been tried in Apollo moon mission flight is hydrogen oxygen fuel cell. So we will study about this cell. Now we will take one by one. First about dry cell. So actually dry cell is the cell that is used in radio, torches, etc. If you cut open the dry cell, then you will notice that here it consists of anode which is made of the zinc container. Actually in the description of cells you have to do in this manner. First you have to write anode, cathode, what is electrolyte, and then you have to give the cell reaction and what is the voltage or other features of the cell. So जब भी आपको description लिखना हो तो आप इस तरह से इसको short में या brief में आप लिख सकते हैं. तो anode is made of zinc container and cathode is made of graphite which is surrounded by MnO2 paste. Electrolyte is the paste of NH4Cl and zinc chloride. Now when the cell is discharged, the following reaction occurs at the electrode when it gives the current. At anode, you see the zinc is oxidized into zinc ion by losing electron, and then at the cathode these electrons are used. Now you see at the cathode we have ammonium ion coming from the electrolyte and MnO2, and the electron is gained by ammonium ion making ammonia and hydrogen atom. Hydrogen atom is taken by MnO2 to form MnOOH, and this species then gives Mn2O3 plus H2O. Now if you see this cathode reaction, so here the actual reduction of manganese is taking place from +4 oxidation state to +3 oxidation state. So here manganese is reduced at the cathode and zinc is oxidized at the anode. Now what is the function of zinc chloride used here?
एक्चुअली पहले जब जिंक क्लोराइड यूज नहीं होता था तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैथोड के रिएक्शन में अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस होती है, and this ammonia gas build up the pressure. So due to the pressure build up inside the cell, it may break the seal of the cell. तो इसीलिए इसका प्रेशर बिल्डअप ना हो और इसको हम सॉल्युबल फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में ट्रैप कर लें, तो इसके लिए जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है, जो कि अमोनिया को एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ट्रैप करता है। डायामीन डाइक्लोराइडो जिंक सेकेंड के फॉर्म में इसको ट्रैप कर लेता है, इसीलिए इसका प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस सेल से एसोसिएटेड होता है कि MnO2 का काम क्या है, तो यहाँ MnO2 एक डीपोलराइजर का काम करता है जो कि हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। दूसरी बात यह है कि अगर ड्राई सेल जब भी हम परचेज करें हमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज जो ड्राई सेल है इसका वोल्टेज अपने आप चेंज होता रहता है। इसका वोल्टेज 1.25 से 1.50 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है NH4Cl, ये एसिडिक करेक्टर का होता है और ये जिंक कंटेनर जो कि यहाँ एनोड का काम करता है उससे रिएक्ट होकर उसको कोरोड कर देता है। तो इसीलिए द ड्राई सेल डू नॉट हैव द लॉन्ग लाइफ because NH4Cl is acidic in nature and it corrodes the zinc container. So this is all about the dry cell. Now second cell is mercury cell, that is also called as Rubin-Mallory cell. It is found used in low current devices like watches and hearing aids. अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है इस सेल का। एनोड इज मेड ऑफ जिंक कंटेनर, कैथोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ mercury second oxide HgO and KOH. Now what is the cell reaction? Note that the electrolyte is separated from the zinc container by the porous paper in between these two. The cell reaction when takes place at anode, zinc oxidize होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट से आयन आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक ऑक्सीडाइजेज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन and it forms zinc oxide and water. Now at the cathode, the mercury second oxide is reduced to mercury by taking the electron. A reduction is the reaction of cathode, so reduction is taking place. HgO in presence of water plus 2 electron gives mercury liquid and 2H minus. अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जिंक सॉलिड है, मरकरी ऑक्साइड सॉलिड है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड है और जो मरकरी है वो प्योर लिक्विड है। तो इसमें कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो। तो इसीलिए दिस सेल गिव्स द कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाई द मरकरी सेल गिव्स द कांस्टेंट वोल्टेज। तो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज द नेट सेल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल डज नॉट कंटेन एनी आयन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन बी चेंज्ड। और जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, जब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तब इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट बना रहता है जब तक ये करंट देती है, अदरवाइज ये सडनली डेड हो जाएगी। नाउ सेकेंडरी सेल। Secondary cell, the example is as lead storage battery which is made of the combination of lead storage cells. और हर जो each lead storage cell है this gives the potential of 2 volt. अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? Each cell is made of anode which is made of spongy lead, cathode made of grid of lead packed with PbO2 and electrolyte is 38% sulfuric acid solution जिसकी density 1.30 gram per centimeter cube होगा। Now since this is secondary cell, so it can be discharge and recharge. So when it gives the current means when it is discharged, तो इस पर क्या रिएक्शन होती है? तो एनोड जो कि स्पंजी लेड का बना हुआ है ये ऑक्सीडाइज होगा। सो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो Pb है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Pb++ बनाता है। और जो Pb++ है, जो सल्फेट आयन आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट से, उससे रिएक्ट होकर PbSO4 सॉलिड बना देता है और ये PbSO4 वहीं पर जो हमारा स्पंजी लेड का इलेक्ट्रोड है उसे एडहेयर रहता है। सिमिलरली एट कैथोड PbO2 है, लेड 4th ऑक्साइड,
सल्फेट आयन इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, यहाँ रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा और वाटर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें इस लेड स्टोरेज सेल में कि जो सल्फेट आयन है ये कंटिन्यूसली ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जो कि सॉलिड है और ये वहाँ डिजॉल्व नहीं हो रहा है, बट ये इलेक्ट्रोड्स पर एडहेयर हो जा रहा है। यही कारण है कि जैसे जैसे ये सेल यूज़ होगी इसका जो एसिड है उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और जैसे जैसे उसकी डेंसिटी कम होगी धीरे धीरे उसका जो करंट आउटपुट है वो भी कम होने लगेगा और फिर हमें ज़रूरत होगी कि हम उसको रिचार्ज कराएं। तो जब हमारी ये लेड स्टोरेज सेल डेड हो जाती है तो जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो उस समय ये एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फंक्शन करती है और हम इसको डीसी सोर्स जिसका वोल्टेज हमारी बैटरी से ज़्यादा हो उससे हम कनेक्ट कर देते हैं और अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैथोड पर ये रिएक्शन होगा, ये Pb सल्फेट जो यहाँ बना हुआ है ये स्पंजी लेड पर एडहेयर है, लेकिन अब चूँकि इसको हम कहाँ से जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब इसका रिडक्शन होना है। तो देखिए SO4 में Pb++ है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों चार्ज खत्म हो जाएगा, ये Pb में रिड्यूस हो जाएगा जो कि स्पंजी लेड है और सल्फेट आयन मीडियम में जाएगा। तो अब लेड क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर PbSO4 और वाटर के प्रेजेंस में ये PbO2 बना दिया। तो जो हमारा जो एनोड और कैथोड है वापस क्या हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। तो इस समय ये एज ए क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कर रहा है। फिर वापस जब हम इसको चार्ज कर लेंगे तो वापस हम यूज करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग साइकिल से हम लेड स्टोरेज सेल को यूज कर सकते हैं। जैसे हमें 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो हमें 3 सेल्स को जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एनोड की प्लेट्स को एक साथ जोड़ देते हैं और कैथोड की प्लेट को एक साथ जोड़ देते हैं और ताकि उसका करंट आउटपुट बढ़ सके। नाउ ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है चार्जिंग का, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। नाउ फ्यूल सेल, द सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट एनी कंबशन इज़ कॉल्ड फ्यूल सेल। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो कि अपोलो मून फ्लाइट में यूज हो चुका है उसकी हम वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो पोरस कार्बन का बना होता है जो कि कुछ कैटलिस्ट है जैसे प्लेटिनम है या पैलेडियम है या सिल्वर है उससे इम्प्रेग्नेटेड रहता है, मतलब उससे सेचुरेटेड रहता है। और इन जो कार्बन पोरस प्लेट्स है इसको एक थिक सॉल्यूशन ऑफ एल्कली NaOH या KOH में इंसर्ट किया रहता है उसके अंदर ही, ठीक है। और फिर इनका कनेक्शन उस लोड से करते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना है। और जो गैसेस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन गैसेस को आउटसाइड सिलेंडर में स्टोर किया जाता है एंड दीज गैसेस आर कंटिन्यूसली बबल्ड एट द इलेक्ट्रोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaOH। तो ये तो रहा कंस्ट्रक्शन। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है जो कि सेचुरेटेड होगा कैटलिस्ट से और ये रॉड्स इंसर्टेड होंगी कहाँ पर, थिक NaOH या KOH सॉल्यूशन में, ये अगर या जिलेटिन इसमें बना होगा। और जो गैसेस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको बाहर स्टोर करेंगे और ये रेगुलेटर है कंटिन्यूस सप्लाई देंगे। तो ये एज ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी हमें अवेलेबल होगा। नाउ सेल रिएक्शन क्या होगी जब ये हमें करंट देगा या ये डिस्चार्ज होगी। एट एनोड हाइड्रोजन गैस आएगा, बेस मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन है उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन से H+ बनेगा, H+OH- से रिएक्ट होकर H2O बना देगा। नाउ एट द कैथोड ऑक्सीजन बबल्ड होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा हाइड्रोक्सिल आयन में। नेट सेल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, चूँकि यहाँ कंबस्शन नहीं होना है तो पोल्यूशन फ्री है और इसकी इफ़िशियंसी हाई होती है क्योंकि जब हम फ्यूल को कंबस्ट करके एनर्जी लेते हैं तो उसमें जो इफ़िशियंसी है वो केवल 40% होगी और फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी जो है वो 60 to 70% होती है। तो ये इसके एडवांटेज है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है इसको बनाने में। जैसे ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड है
और गैसेस जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। तो ये तीनों फिजिकल स्टेट को एक साथ ले आना ये प्रॉब्लम करता है। दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कोरोसिव होता है और कैटलिस्ट का हाई कॉस्ट है, और जो गैसेस हैं उनको हैंडलिंग और उनके सप्लाई को रेगुलर रखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके साथ डिफ़िकल्टी होती है इस सेल को कंस्ट्रक्ट करने में। अगला टॉपिक है इसमें कोरोजन। हम बहुत सारे प्रोसेस देखते हैं अपने नेचर में, जैसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट है, या रस्टिंग ऑफ आयरन है। सो दिस प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक of air and moisture to form hydrated oxide or sulfide etc. is called corrosion. तो कोरोजन में मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन को ऐसे समझेंगे कि प्योर आयरन कभी रस्ट नहीं करता है। अगर इम्प्योर आयरन है जहाँ पर मॉइस्चर है या एसिडिक मीडियम है वहाँ पर रस्टिंग उतना ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उतना ही तेज रस्टिंग। अब हम ऐसे समझें कि जब रस्टिंग होती है तो वहाँ पर कोरोजन सेल्स बन जाती है। इसीलिए इस टॉपिक को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिया गया है, क्योंकि कोरोजन में भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जैसा किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। तो यहाँ पर कोरोजन सेल्स बन जाती हैं। अब ये मान लीजिए इम्प्योर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो प्योर पार्ट होगा आयरन का वो एनोड का काम करेगा। तो वहाँ जो प्योर आयरन है वो ऑक्सीडाइज होगा, फेरस आयन बनाएगा इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होगा, ये आएगा कैथोडिक रीजन में। अब कैथोडिक रीजन में ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस होगा, लेकिन इस रिडक्शन के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए। तो H+ कहाँ से आएगा? जो एयर है, जो मॉइस्चर है, तो एयर में होता है CO2 या कई बार पोल्यूटेड एयर में एसिडिक गैसेस होती हैं, तो वो वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड बनाता है और एसिड इज़ द सोर्स ऑफ H+। तो जब तक H+ मिलता रहेगा तब तक आयरन की रस्टिंग होती रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस फिर हो जाएगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन रिड्यूस होगा यहाँ पर आयरन और ऑक्सीडाइज होगा। तो अब वाटर बन गया। तो होता क्या है कि फेरस आयन वाटर में डिजॉल्व होकर फिर सरफेस पर पहुँच जाता है। सरफेस पर उसको फिर एक्सपोजर होता है एयर से, मॉइस्चर से। तो फिर एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो फेरस फॉर्म है वो वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक फॉर्म में, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिल करके ये फिर ये दानेदार पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर उस सरफेस को छोड़ देता है। एक्चुअली जो मेटेलिक बॉन्डिंग है अब तो वो रही नहीं, क्योंकि ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन गया। कुछ पाउडरी मास बन जाता है जो कि एयर से या वाटर से ब्लोन अवे हो जाएगा, एसिडिक मीडियम वापस आ जाएगा। नाउ प्रिवेंशन, बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रेसिंग या क्रोमियम की पॉलिश लगा सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं से क्रोमियम की जो कवरिंग है वो टूटी तो इसके अंदर आयरन की रस्टिंग होती रहती है और धीरे धीरे फिर वो पील ऑफ हो जाता है। दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसमें गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है या कवरिंग कर दी जाती है। इसका जो बेनिफिट ये है कि अगर जिंक थोड़ा सा भी बचा होगा तो वो आयरन को रस्टिंग से बचाएगा। कारण ये है कि यहाँ पर जिंक खुद ऑक्सीडाइज होता है और आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है, और जब तक आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा तब तक रस्टिंग नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में कि जो हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है उस पर जिंक की कवरिंग चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए अंडरग्राउंड पाइपलाइंस कई किलोमीटर तक गई हुई है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, या इस तरह का कोई सेटअप है जिस पर हम कवरिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, इसकी रॉड्स को इसके पास ही डिग करके होल में इंसर्ट कर दिया जाता है। और जो ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं इनका कनेक्शन जो हमारा आयरन पाइपलाइन है उससे कंडक्टिंग वायर से कर दिया जाता है। तो चूँकि जो मैग्नीशियम है दिस इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज होगा, Mg++ और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि उस जो पाइपलाइन है उस पर स्प्रेड हो जाएंगे। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन उस आयरन पाइप पर स्प्रेड हो जाएंगे तो जो उसके आयरन एटम है वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है कि पीरियोडिकली इसको चेक करेंगे, अगर रॉड ये कंज्यूम हो गई है तो इसको रिप्लेस करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से बच जाएगा। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, कुछ एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट और फास्फेट होते हैं जिनमें रस्टिंग नहीं होती है। तो करते क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट को एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट में डाल के बॉयल कर दिया, तो उसके आउटर सरफेस पर एक इनर्ट लेयर ऑफ आयरन क्रोमेट
बन जाती है। तो जब तक ये इनर्ट लेयर और एल्कलाइन मीडियम होता है, तो चूँकि मीडियम एल्कलाइन है तो ये प्रोसेस सेटअप नहीं होगा कैथोड वाला और रस्टिंग नहीं हो पाएगी। और बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एज ए फ्यूचर फ्यूल। सो नाउ आवर साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर दिस, लेकिन हाइड्रोजन का यूज एज ए फ्यूल करना और एक हाउस होल्ड लेवल पर करना ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन को की स्टोरिंग के लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर्स होने चाहिए या कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसमें हम इसको सेफली स्टोर कर सकें। और फिर हाउस होल्ड लेवल पर इसका यूज भी ऐसा हर्थ होना चाहिए, ऐसा चूल्हा होना चाहिए जिसमें हम इसके सप्लाई को रेगुलेट कर सकें। तो आवर साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन एज ए फ्यूचर फ्यूल। थैंक यू वेरी मच।